Welcome, dear students. Today I will discuss here the second chapter of biology plus 2. The name of the chapter is Reproduction in Flowering Plants, that is Angiosperms. में reproduction कैसे होती है? Reproduction in flowering plants. Flowering plants are also known as angiosperms. So how angiosperms reproduce, इसके बारे में हम जानेंगे. So before we start this topic, we should know that the reproductive organs of angiosperms are present in flowers, or we can say that the flowers bear the reproductive organs of the flower, organs of the plant, angiosperms. So let us see what is provided to you by notes. Reproductive organs of angiosperms are present in flowers. The male reproductive organs are stamens and female reproductive organs are carpels. These are the essential parts of a flower, while the sepals, petals, thalamus, etc., they are non-essential parts of a flower. So let us see the diagram of a typical flower from the book. This is the diagram of a flower. Let us see different parts of flower. This is the thalamus, on which the whole flower rests. From the thalamus, from the upper side of thalamus, there arises a rounded structure, that is ovary, which is extended by a style, and the end of ovary is a stigma with a funnel-like structure. It means we can see that the center of a flower consists of a long tube-like structure that is rounded at the base, known as carpel. This structure, from this is the stigma, long tube, style, and the rounded structure is ovary. So stigma, style, and ovary, these three structures are known as carpel or gynoecium. Gynoecium means it is the female part of the flower. Female part of the flower, and you know that the female part of the flower, the main function is to form the ovules or eggs. These are formed in the ovaries. We will discuss in detail in next few minutes. And the other structure we can see in flower is the male reproductive organs, that is the stamens, with a rounded packet-like structure and a filament. Packet-like structure is known as anther. You see here, this is the packet-like structure, anther, and a long filament. So anther and filament both are known as stamen or androecium, where male gametes are formed. Means we can say that the male gametes are formed in the anther. If we cut this anther into small pieces, we can see inside it pollen sac, within which pollens, small rounded structures, pollens are formed. Pollens are the male gametes. We will see it in later stages. So these two structures, stamens and carpels, they are the essential parts of a flower, while all other parts like thalamus, sepals, and petals, they are non-essential parts of flower. They have only accessory functions in the reproduction. So if we see the structure of a single stamen, this is stamen with a rounded packet-like structure on the tip and a long filament. The rounded structure is anther, inside which pollen sac is there, where small pollens are formed, known as stamen. This is the structure of a complete carpel. This is the ovary at the base,
rounded structure, long tube-like structure, that is style, and the tip is funnel-like, that is known as stigma. The structure of anther. We will study here one by one the structure of gametes, structure of anther and ovules in detail. Structure of anther. The broader terminal fertile part of the stamen is called anther. Broader terminal part, यह broader terminal part of the stamen is known as anther. There may be single, two or more than two lobes of anther. anther के टू और मोर देन टू लोब्स भी हो सकते हैं, जैसे इसमें दो लोब्स जो आपको एंथर के दिख रहे हैं. सिंगल lobed anthers are called monothecous, while two lobed structures are called bithecous. This is the bithecous type of anther. These lobes enclose in them pollen sac which form pollen grains, that is haploid male gametes. In them the pollen grains are formed from microspore mother cells, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. पोलन सैक के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या MMC बोलते हैं, विच आर नोन एज द स्पोरोजिनस सेल्स ऑफ द एंथर, जिनको एंथर के स्पोरोजिनस सेल्स बोलते हैं. मीन्स दे फॉर्म द स्पोर्स. एंथर शोज टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर. अगर हम एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे देन इट शोज टू टाइप्स ऑफ cells, that is two types of structure, that is microsporangial wall and sporogenous cells. The outer cells are microsporangial cells while the inner cells are sporogenous cells, that is MMC. MMC full form microspore mother cells. So the two structures one by one, what is their function? Microsporangial wall. The second structure is the sporogenous cells. Microsporangial wall is made up of three layers of different types of cells, that is endothecium, middle layer and tapetum. What is tapetum? Tapetum is very important here because it is the inner specialized layer of the sporangial wall. Sporangial wall की जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं tapetum. बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल्स इसमें होते हैं which provide nourishment to the MMC. Microspore mother cells को वो nourishment देते हैं and even young microspores are formed by tapetum. So अगर हम किसी एंथर का स्ट्रक्चर को देखेंगे, this is the bithecous type of, not bithecous, tetrathecous and दिखेगा ये वन लोब, फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब और थर्ड एंड फोर्थ लोब जो इसके पीछे की तरफ को है. एंड इफ़ वी कट दिस फ्रॉम दिस एंगल फ्रॉम TS, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर will be seen like this. This structure is this, and the lobes, 4 lobes are there, 1 2 3 4. 4 lobes contain 4 pollen sacs, 1 2 3 4, where pollen grains will be formed. Here the outer balls are known as the microsporangial cells, microsporangial walls, that is a endothecium, this way endothecium, then middle layer, then inner layer is tapetum, then comes the sporogenous tissue or sporogenous cells. Means जो outer layers हैं, सबसे बाहर वाली जो layers हैं वो होती हैं sporangial walls. ये sporangial wall की सबसे बाहर वाली लेयर है, that is endothecium, then middle layer, then tapetum is the inner layer, then this reddish colored cells जो आपको दिखाए जा रहे हैं रेड कलर से ताकि आप उसको अलग से पहचान सकें. ये सेल्स दे
are cells known as sporogenous cells, which contain pollen grain mother cells और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं MMC, ये देखिए, इनको हम PMC भी बोल देते हैं, पोलन ग्रेन मदर सेल्स भी बोल देते हैं। दे अंडरगो मियोसिस, ये जो सेल्स हैं इनके अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस से हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स या मेल गैमीट्स बनते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मीन्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स को माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स बाय स्पोरोजेनस सेल्स इन द एंथर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं दे गिव राइज टू हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बाय meiosis. This is the structure of a pollen grain, which is showing us two membranes around it. The outer membrane is rough and is known as axine, while the inner membrane smooth is known as intine, and it contains two nuclei, vegetative and generative nucleus. So we will discuss in detail what happens to the male gametophyte. Again, development of male gametophyte. So, development of male gametophyte. Pollen grain is immature male gametophyte. जो पोलन ग्रेन है वो एक इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट होता है, विच हैव सेंट्रल न्यूक्लियस एंड ए डेंस साइटोप्लाज्म, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है पोलन ग्रेन में और एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड्स अनइक्वली इनटू टू सेल्स। पोलन ग्रेन का जो प्रोटोप्लास्ट है वो दो अनइक्वल तरीके से डिवाइड करके दो सेल्स बनाता है, दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। द जनरेटिव सेल्स और न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमीट, मेल न्यूक्लियाई और मेल गैमीट्स। जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, जो जनरेटिव सेल होता है पोलन ग्रेन के अंदर, वो दो मेल गैमीट्स बनाता है। द ट्यूब सेल्स एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड गिव राइज टू पोलन ट्यूब। जो दूसरा वाला है वेजिटेटिव सेल, वो पोलन ट्यूब बना देता है विद पोलन ट्यूब थ्रू जर्म पोर। द आउटर सरफेस ऑफ द पोलन ग्रेन इज रफ। पोलन ग्रेन की आउटर सरफेस रफ होती है, सो इट कैन नॉट ईजिली रीच द ओब्यूल ऑफ द ओवेरी थ्रू स्टिग्मा एंड स्टाइल। क्योंकि पोलन ग्रेन की आपने देखा सरफेस जो बाहर की जो है वो रफ होती है, ऐसे खुरदरी है, कांटेदार है, सो इट कैन नॉट ईजिली रीच अप टू द ओवेरी थ्रू स्टिग्मा एंड स्टाइल, सो इट reaches by the formation of pollen tube. ये जो पोलन ग्रेन है जर्म पोर के थ्रू एक पोलन ट्यूब देगा। पोलन ट्यूब जो दैट elongates and grows within the style and stigma. This pollen tube germinates through the stigma and style and then reaches up to the ovary. Here we can see that the generative nucleus divides into two male nucleus. These red colored, these are two male nuclei, and this is the nucleus of pollen tube or vegetative nucleus. It has no functional reproduction. It only helps in the formation of pollen tube. So through pollen tube, the two male nuclei, they will be transported towards the ovary. Just remember that there are two male nuclei
they are going to take part in the fertilization in the ovary. So remember that these two male gametes are formed from the generative nucleus of the pollen grain. Then what happens to the female reproductive organs in the meanwhile? The female reproductive organs of the flower are carpels, which collectively known as gynoecium. कार्पल्स को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, जिसको हम गाइनोशियम या पिस्टिल भी बोल देते हैं. कार्पल हैज़ 3 पार्ट्स, नेमली कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी. ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ये सारे स्ट्रक्चर को किसके साथ अटैच्ड होते हैं, ये विद थैलमस. सो एंड gynoecium जो है that is having the structures like stigma, style and ovary. Now these are the ovules. Ovules are attached with ovary in a particular manner. They can be in some plants, they can be attached like anatropous ovules or orthotropous ovules. Here we will discuss in detail in the next structure. So let us see, this is the structure of ovule. Many changes take place in the ovule structure within the ovary. ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल है, यहाँ पर एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, एक सिंगल ओव्यूल इज शोइंग हियर इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर. ओव्यूल हैज़ 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक. ये ओव्यूल के अंदर के जो स्ट्रक्चर हैं वो आपने डिटेल में बुक से बनाए होंगे. अभी मैं इसका एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको. चलो इसी को देखते हैं. ये ओव्यूल के जो अटैचमेंट है दैट इज़ फनिकल और हिलम. फनिकल और हिलम इसके साथ, ये ओवेरी के साथ ये अटैच्ड होता है इस स्ट्रक्चर के साथ. और इसके बाहर ये 2 और 3 लेयर जो हैं, ये 1 2 ये इंटेगुमेंट्स ऑफ द ओव्यूल हैं. इंटेगुमेंट्स ये लिखा हुआ है, इंटेगुमेंट्स ऑफ द ओव्यूल. उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसमें बिंदु बिंदु भरे हुए हैं, ऐसे बिंदु से निशान लगाए हुए हैं. दिस इज न्यूसेलस. इंटेगुमेंट्स के अंदर का स्ट्रक्चर न्यूसेलस. न्यूसेलस के अंदर आता है एम्ब्रियो सैक. ये एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 टाइप के न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे ऑन द अपर साइड. दैट इज अपर साइड मीन्स ए, देखिए यहाँ पे जो इंटेगुमेंट्स हैं ये दे आर लीविंग ए स्मॉल पोर. यहाँ पर एक छोटा सा पोर जो है वो रह रहा है, दैट इज नोन एज माइक्रोपाइल. Small pore is left on the upper side, that is known as micropyle. और micropyle अब माइक्रोपाइल वाली साइड को आप देख सकते हैं. ये 3 सेल्स हैं इधर, ये 3 cells, 1 2 3 सेल्स ये अपर साइड है माइक्रोपाइलर साइड को, माइक्रोपाइल वाली साइड को. 2 सेल्स जो हैं, 2 न्यूक्लियस जो हैं, दे आर सीन इनसाइड द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक के सेंटर में 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं विद इन द 1 सेल. ये एक ही सेल है जिसको हम सेंट्रल सेल बोलेंगे, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं. मीन्स इट इज़ ए बाई न्यूक्लिएटेड सेंट्रल सेल. सेकेंडरी न्यूक्लियस भी हम सेकेंडरी सेल भी बोल देते हैं इसको. और 3 सेल जो हम नीचे की तरफ को हैं, 1 2 3, these 3 cells are known as एंटीपोडल सेल्स. तो 3 न्यूक्लियस जो हैं 3 सेल्स के ये हैं एंटीपोडल, 2 सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस हैं और 3 न्यूक्लियस ये 3 सेल्स में हैं. दैट इज़ सेंट्रल है एग सेल, और एग सेल के दोनों साइड को 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं.
तो ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सेल्ड एम्ब्रोसैक है। 7 सेल्ड सेल्स अगर देखे जाएँ तो 7 सेल हैं इस एम्ब्रोसैक में, लेकिन न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो 8 न्यूक्लिएटेड है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एम्ब्रोसैक जो इट इज़ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड इन एंजियोस्पर्म्स में ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ और स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। 1 2 3 सेल्स हैं ये माइक्रोपाइलर रीजन में। माइक्रोपाइलर के तीनों रीजन में जो 3 सेल्स हैं इनको हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस या एग एपरेटस, ये लिखा हुआ है एपरेटस, ये फिलीफॉर्म एपरेटस एक ही बात है। इसके दो साइड को सिनर्जिस सेल और सेंटर में एग एपरेटस होता है। तो एग को एग सेल के पास तक पहुंचना होता है पोलन ट्यूब से इन मेल न्यूक्लियाई को, क्योंकि ये दोनों मेल गैमीट्स हैं। मेल गैमीट्स जो हैं वो स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए माइक्रोपाइल से एंटर करेंगे तो हम उसको बोलेंगे पोरोगैमी, और यहाँ पर अपने न्यूक्लियस शेड करेंगे। न्यूक्लियस को यहाँ पर छोड़ने से एक न्यूक्लियस जो मेल जो है वो एग के साथ फ्यूज़ करेगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस मेल का एग के हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा तो बनेगा एक डिप्लॉइड जाइगोट। और जो दूसरा मेल गैमीट है इट विल फ्यूज़ विद द सेंट्रल सेल और विच इज़ आल्सो नोन एज द सेकेंडरी न्यूक्लियस। और यहाँ पर देखो दो न्यूक्लियस पहले से ही हैं, एक और इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो 3N ट्रिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। मीन्स जो एंडोस्पर्म है वो दैट डेवलप्स फ्रॉम द ट्रिप्लॉइड जाइगोट, और एम्ब्रे जो है दैट डेवलप्स फ्रॉम द डिप्लॉइड जाइगोट। मीन्स यहाँ पर दो तरह से या दो बार फर्टिलाइजेशन होता है इन एंजियोस्पर्म्स में। एक तो एग सेल फ्यूजेस विद वन मेल न्यूक्लियस विच इज़ आल्सो नोन एज द ट्रू फर्टिलाइजेशन। एग एंड मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस टुगेदर, simple fertilization takes place and double N या 2N or diploid zygote is formed. Another male nucleus fuses with this which is already diploid. डिप्लॉइड के साथ हैप्लॉइड जब फ्यूज़ करेगा तो ट्रिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, एंड ट्रिप्लॉइड जाइगोट बनने को हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पर दो प्रोसेसेस जो फर्टिलाइजेशन में मेन देखने को मिलती हैं, दैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन आता है तो आप कहेंगे कि दो बार फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म्स में, एक मेल न्यूक्लियस एग के साथ और दूसरा मेल न्यूक्लियस सेंट्रल सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होता है। एक बार बनता है डिप्लॉइड जाइगोट और दूसरे में बनता है ट्रिप्लॉइड जाइगोट। ये तो डबल फर्टिलाइजेशन। अगर आता है कि व्हाट इज़ ट्रिपल फ्यूजन, तो ट्रिपल फ्यूजन में आपको लिखना है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस विच इज़ ऑलरेडी डिप्लॉइड इट फ्यूजेस विद द other male nucleus to give rise to triploid zygote which later develops into the embryo, so that is triple fusion. अब ये जो this type of ovule is known as orthotropous ovule. This is upright in structure. Okay, another type of ovule which is in your syllabus, it is anatropous ovule. इसका डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं बना है, अपने बुक से या नेट से इसको बनाना है दोबारा से। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये होगी कि ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ ट्विस्टेड वन। ऐसे इसको अगर हम यहाँ से घुमा देते हैं ऐसे, तो ये वाली चीज़ जो है, या इसको हम यहाँ से ऐसे घुमा देते हैं तो ये वाली चीज़ हीलम फनिकल यहीं रहेगा, और ये जो है ऐसे नीचे की तरफ ग्रो कर जाएगा। तो यही ऑर्थोट्रोपस का ये बन गया एनाट्रोपस ओव्यूल। कुछ प्लांट्स में एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल मिलते हैं, इसमें स्ट्रक्चर सेम है, ओनली द फनिकल इज रिज शेप्ड एंड समवट लार्जर। यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स हियर इन द डायग्राम, ऑलरेडी यू हैव बीन गिवन नोट्स। ये इसकी फनिकल काफ़ी लॉन्गेटेड एंड लार्ज है यहाँ पर। ये इसकी ओव्यूल के अराउंड इंटेगमेंट्स हैं। ये इसका माइक्रोपाइलर रीजन है। तो माइक्रोपाइलर रीजन को फिलीफॉर्म एपरेटस या एग एपरेटस होता है, जिसमें 3 सेल्स होंगे, 2 सिनर्जिड और एक सेंटर में एग सेल। बीच में सेंट्रल सेल वैसे ही जैसे दूसरे में था,
और यहाँ पर चलेजल साइड को, चलेजा वाली साइड को, यहाँ पर देखो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर तो था, इसमें चलेजा नीचे को था। चलेजल एंड में एंटीपोडल सेल्स होते हैं, माइक्रोपाइलर साइड में एग अपरेटस होता है। यहाँ पर भी वैसा ही है, चलेजल साइड में एंटीपोडल और माइक्रोपाइलर रीजन में एग अपरेटस है। तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, कई बार पेपर में आ जाता है ये कि ड्रा द डायग्राम ऑफ ऑर्थोट्रोपस ओब्यूल और ड्रा द डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओब्यूल, सो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड लर्न these things. This ovule is also 7-celled and 8-nucleated, just like orthotropous. So यहाँ थोड़े से नोट्स आपको दिए गए हैं इसके बारे में कि what is the structure of ovule. Ovules in angiosperms are attached by placenta funicle to the ovary. The embryo sac is 8-nucleated and 7-celled. The filiform apparatus or egg apparatus is formed of 3 cells, 2 peripheral synergid cells and middle oosphere cells, इसकी बात हो रही है. The micropyle region and 3 antipodal cells in the chalazal end, and the middle of embryo sac is a binucleate, that is 2N secondary cell or central cell. ये है 2N cell. So this makes embryo sac 7-celled and 8-nucleated structure. You can see the figure given above for detail. Pollination. Pollination is another step after the formation of gametes. जैसे ही गैमीट्स मेल एंड फीमेल गैमीट्स बन जाते हैं वहाँ पर उसके बाद पॉलिनेशन प्रोसेस होती है. वेरी सिंपल टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स और मेल गैमीट्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पस बाय वेरियस मोड्स, दैट इज़ थ्रू एयर, वाटर, बैट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स. पॉलिनेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं. अब एंथर में पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं और स्टिग्मा तक इनको पहुंचना है. जैसे कि ये एक फ्लावर है जिसमें यहाँ एंथर में पोलन ग्रेन्स बने और यहाँ स्टिग्मा तक पहुंचना है. तो कैसे पहुंचेंगे? दे कैन रीच हेयर थ्रू वेरियस एजेंसीज लाइक वाटर, एयर, bats, birds or other animals, etc. So pollination in broader terms it is of two types, self pollination and cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन की फर्दर 2 टाइप्स हैं, ऑटोगैमी एंड कीटोनोगैमी. इसको समझना है. ऑटोगैमी क्या है? ऑटोगैमी इज़ द पॉलिनेशन बाय पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम फ्लावर. अगर एक ही फ्लावर के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स लगे हुए हैं वो अपने पोलन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर को पॉलिनेट कर देते हैं. जैसे कि ये दिया हुआ है, ये फ्लावर है एक, इसके ऊपर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल पार्ट्स भी हैं फीमेल भी हैं. यहाँ से पोलन्स अगर अपने ही फ्लावर को पॉलिनेट कर देते हैं, दैट इज़ ए काइंड ऑफ ऑटोगैमी. When pollination takes place by the pollens of the same flower. Then geitonogamy. Geitonogamy is also a kind of self-pollination. In case of geitonogamy, pollination takes place by the pollen grains of different flowers of the same plant. अब एक ही फ्लावर के ऊपर कई बार बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं. एक ही प्लांट के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं. अगर अपने ही प्लांट के फ्लावर्स आपस में पॉलिनेट करेंगे, दैट इज़ आल्सो kind of self pollination, but that will be known as geitonogamy. अपने ही प्लांट के बाकी फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन गीटोनोगैमी है. देन क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स पॉलिनेट ईच अदर, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. लेट अस हियर द डायग्राम्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में
अपना ही फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, तब सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। हेयर वन फ्लावर showing self pollination, and this structure is showing cross pollination when two different plant, A plant B, they bear the flowers, and its pollen grains, they are pollinating the flower of other plant, and its pollen grains are pollinating the flower of another plant. That is cross pollination. Cross pollination is further of many types. इसके कई टाइप्स आपको बताई हुई हैं, जैसे कि एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, ऑर्निथोफिली, चीरोप्टेरोफिली, जूफिली, एंटमोफिली एंड मेलैकोफिली एट्सेट्रा। एनिमोफिली, एनिमो होता है एयर, व्हेन एयर हेल्प्स इन द पॉलिनेशन, व्हेन एयर हेल्प्स इन द स्प्रेड ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा, दैट इज एनिमोफिली। मेलैकोफिली is the pollination by mollusks. Hydrophily, when the pollination is helped by the agency of water currents. Ornithophily, ornitho means birds, if birds help in the pollination. Chiropterophily means pollination helped by the bats. Zoophily, pollination helped by animals. Entomophily, pollination helped by insects. Myrmecophily, pollination by ants. Then what are the characters of एनिमोफिलस फ्लावर्स? इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक कि एनिमोफिलस फ्लावर्स जो हैं उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एयर के द्वारा पॉलिनेट होते हैं। सबसे पहले फ्लावर्स आर स्मॉल, कलरलेस, ओडरलेस एंड नेक्टरलेस। जो एयर के द्वारा पॉलिनेट होते हैं फ्लावर्स, उनके फ्लावर्स छोटे होते हैं, कलरलेस, कलर की कोई ज़रूरत नहीं है, ओडरलेस, स्मेल, खुशबू भी नहीं होती, और नेक्टर, कोई जूस या हनी भी नहीं होता है फ्लावर्स में। सेपल्स एंड पेटल्स आर रिड्यूस्ड और एब्सेंट। सेपल्स और पेटल्स, कोई ब्राइट कलर की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए दे आर रिड्यूस्ड और एब्सेंट ऑलमोस्ट। स्टेमन्स एंड एंथर्स आर अबंडेंट। जो स्टेमन्स या उनके ऊपर लगे हुए एंथर जो हैं काफ़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, सो दैट ए नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। एंथर्स बर्स्ट फोर्सिबली, एंथर्स बर्स्ट करते हैं, फटते हैं एकदम से, एंड दे सडनली थ्रो शावर ऑफ पोलन ग्रेन्स इन एयर, एज इन केस ऑफ अर्टिका, इट इज़ कॉल्ड गन पाउडर। अर्टिका एक प्लांट का नाम है, उसके केस में है तो हम उसको बोलते हैं गन पाउडर। इनके वो फटते हैं और जैसे गन का पाउडर स्प्रे होता है वैसे स्प्रे हो जाते हैं एयर में, और एयर उसको ले जाती है फ्लावर्स तक। पोलन ग्रेन्स आर ड्राई एंड अनवेटेबल। ये पोलन ग्रेन्स जो है वो ड्राई रहते हैं, वेट नहीं होते। लाइक कैनाबिस, भांग को बोलते हैं, कोकोनट, डेट, ग्रास, मुलबरी, पॉपुलर, मेज एट्सेट्रा। These are the characteristics of anemophilous flowers, or the flowers which are pollinated by air. Then characteristics of hydrophilous flowers, water pollinated flowers. Flowers are small, colorless, odorless and light. यहाँ पर भी कलर या स्मेल होने की या खुशबू होने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्लावर के लिए। पोलन ग्रेन्स आर अनवेटेबल एंड विदाउट नेक्टर। ये भी अनवेटेबल होते हैं, गिले नहीं होते ये वाले पोलन ग्रेन्स, विदाउट नेक्टर होते हैं। लॉन्ग एंड स्टिकी स्टिग्मा होते हैं, इनके जो स्टिग्मा होते हैं वो स्टिकी होते हैं ताकि जैसे ही बहकर कोई पोलन ग्रेन आए तो इसके साथ स्टिक कर जाए। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीमोफिलस फ्लावर्स। एंटीमोफिलस फ्लावर्स मीन्स द फ्लावर्स which are pollinated by insects. The flowers are brightly colored. अब जो insects जिन फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं उनके पेटल्स काफ़ी ब्राइट कलर के होते हैं, बिकॉज ब्राइट कलर अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स ईजीली फॉर पॉलिनेशन। दे आर वेल डेवलप्ड सेपल्स एंड ब्राइट पेटल्स। उनकी पेटल्स और सेपल्स ब्राइट कलर की होती हैं। स्टिग्मा एंड स्टाइल ऑफ द कार्पल्स। कार्पल के स्टिग्मा और स्टाइल जो हैं दे आर फील्ड विद नेक्टर। उनमें नेक्टर होता है, हनी की तरह एक जूस भरा होता है जिसके लिए वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको चूसने के लिए आते हैं। पोलन ग्रेन्स आर हैवी
while stigma is inserted and sticky. पोलन ग्रेन्स तो काफ़ी भारी होते हैं जो एकदम से उसके ऊपर गिर जाते हैं और डूबते चले जाते हैं नेक्टर में नीचे की तरफ को, ओब्यूल्स तक पहुंचते हैं आसानी से और स्टिकी होते हैं. Then there are some types of flowers also. Chasmogamous flowers and clistogamous flowers are there also seen in some plants. So what are chasmogamous flowers? जो chasmogamous flowers हैं, they always remain open. Chasmogamous फ्लावर जो हैं वो ओपन रहते हैं. they remain exposed to external agencies for cross pollination. both anthers and stigmas mature simultaneously. इनमें एंथर और स्टिग्मा जो मैच्योर करते हैं simultaneously. the anthers grow over the neck of corolla. एंथर्स जो है कोरोला की नेक के ऊपर, ये कार्पल के ऊपर ग्रो करते हैं. सो दैट व्हेन एंथर्स ढीस, ताकि जब एंथर फटे तो पोलन ग्रेन जो हैं वो ग्रेविटी के कारण फॉल ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर गिरें. सो दैट दे फेवर ऑटोगैमी और होमोगैमी. फॉर एग्जांपल कैथरेंथस एंड गार्डेनिया. चैस्मोगैमस फ्लावर्स मीन्स विच रिमेन ओपन ऑलवेज. एंड एंथर जो है दे ग्रो ऑन द नेक ऑफ स्टिग्मा, जो स्टिग्मा के बिल्कुल ऊपर ग्रो करती है इसकी नेक. देन क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो हैं, दीज आर द फ्लावर्स विच रिमेन क्लोज्ड. ये फ्लावर जो हैं हमेशा बंद रहते हैं. सो दैट ओनली सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स, ताकि इनमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो. जैसे कि कोमलाइना बेंगलेंसिस एंड अरेचिस हाइपोजिया. अरेचिस हाइपोजिया होता है ग्राउंड नट, मूंगफली. यहाँ पर क्लिस्टोगैमी होती है. क्लिस्टोगैमी इज कंपनीड बाय द जियोकार्पी, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप फ्रूट्स इनसाइड सॉइल. इनमें जो मूंगफली के फ्लावर्स हैं वो ज़मीन के नीचे बनते हैं, वो हमेशा बंद रहते हैं और उनमें सिर्फ ऑटोगैमी होती है. इन अदर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स दे रिमेन अबव द ग्राउंड. फॉर एग्जांपल बाल्सम एंड ओक्सैलिस वाइला एट्सेट्रा. तो इसके साथ ही अभी थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं. व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? व्हाट आर द इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स? वैसे इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है. स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ कंपैटिबल मेल एंड फीमेल गैमीट्स. फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ कंपैटिबल मेल एंड फीमेल गैमीट्स. फर्टिलाइजेशन इज़ आल्सो नोन एज सिंगैमी. फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी भी बोलते हैं. इन एंजियोस्पर्म्स सीडेड प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स इज़ आल्सो नोन एज साइफोनोगैमी. एंजियोस्पर्म्स में साइफोनोगैमी भी बोलते हैं. एज इट इज़ अकम्पनीड बाई पोलन ट्यूब विच ब्रिंग्स मेल गैमीट्स इन contact with female gametes. Siphonogamy is discovered by Strasburger in 1884. It is completed in following steps. फर्टिलाइजेशन में 3 स्टेप्स हैं. सबसे पहला काम है, पहला हेडिंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा. पहला काम है कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे और जर्मिनेट करेंगे, मीन्स दे विल फॉर्म द पोलन ट्यूब. द सेकंड इज द पाथ टेकन बाय पोलन ट्यूब. अब ये जो पोलन ट्यूब बनेगी पोलन ग्रेन के जर्मिनेट करने से, दैट विल ग्रो थ्रू द स्टाइल and reach up to the ovule. So the 3 steps of the fertilization are: number 1, germination of pollen grains on stigma. Second is the path taken by pollen tube, and third is the entry of pollen tube into the embryo sac.
अब ये जो पोलन ट्यूब यहाँ तक पहुँच गई है, वहाँ से मेल गैमीट्स का एम्ब्रियो सैक तक पहुँचना, उनकी एंट्री का होना वो ज़रूरी है, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। चलो, इस बुक में आपको नोट्स आपको पहले से दिए गए हैं, आपने उसको देखना ध्यान से। अब यहाँ पर एक बार फिर से ज़रा ध्यान से देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये है एक कार्पल का स्ट्रक्चर। दिस इज़ द स्टिग्मा, फनल लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग स्टाइल। दिस इज़ ओवेरी, और ओवेरी के अंदर है सिंगल ओव्यूल, एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल आप देख सकते हैं। ये एनाट्रोपस ओव्यूल है जिसका नीचे की तरफ को है इसका माइक्रोपाइल। अब देखो यहाँ से, क्योंकि पोलन ग्रेन्स की जो आउटर सरफेस है एक्साइन दैट इज़ रफ, so it cannot enter into the style and it cannot directly reach up to the ovule, so it breaks up, give rise to pollen tube। और आपको पता है पोलन ट्यूब के अंदर एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनता है, एक जेनेटिव न्यूक्लियस होता है। जेनेटिव न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड्स इनटू 2 मेल न्यूक्लियाई। तो ये साथ साथ चलता है। पोलन ट्यूब के बीच में 2 मेल न्यूक्लियाई जो दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर रीजन। ये माइक्रोपाइल की तरफ पहुंच गए हैं पोलन ट्यूब के थ्रू न्यूक्लियस। यहाँ पर पोलन ट्यूब में जब एंटर करेंगे तो वन ऑफ द मेल न्यूक्लियस वो दैट फ्यूजेस विद द एग apparatus। आपको पता है माइक्रोपाइल की तरफ ही होता है एग apparatus और एग सेल सेंटर में होता है, तो एग सेल के साथ फ्यूज़ कर जाएगा वन ऑफ द मेल न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस जो है वो एग के साथ यहाँ पर फ्यूज़ कर जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, विच इज़ नोन एज ट्रू फर्टिलाइजेशन, और ट्रू जाइगोट फॉर्मेशन विल बी देयर। ट्रू जाइगोट यहाँ पर बन जाएगा एक। और जो अनदर मेल न्यूक्लियस है दैट विल फ्यूज़ विद द सेंट्रल सेल। जो सेंट्रल सेल है जो डिप्लॉयड है पहले से ही, उसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा। दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जो है दैट प्रोवाइड्स द साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अब ये जो एम्ब्रियो है उसका काम क्या है? एम्ब्रियो जो है दैट विल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड न्यूरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो डिप्लॉयड जाइगोट से डेवलप होगा उसके लिए न्यूरिशमेंट और स्पेस प्रोवाइड करेगा, एंड दैट एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू द फ्रूट, देन सीड्स विल डेवलप इनसाइड this. So this is the fertilization in angiosperms. Here 2 important phenomena occur, that is means 2 types of fertilization takes place here. One is known as generative fertilization, that is also known as syngamy, और true fertilization। एक true fertilization जिसमें क्या होता है कि one of the 2 male nucleus, जो 2 मेल न्यूक्लियस जा रहे हैं थ्रू पोलन ट्यूब एग की तरफ, उनमें से एक जो है 1 मेल न्यूक्लियस हैप्लॉइड फ्यूजेस विद द हैप्लॉइड एग एंड फॉर्म्स डिप्लॉइड जाइगोट। ये डिप्लॉइड जाइगोट का बनना जो है दैट इज़ नोन एज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन। बट अनदर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर इज़ द वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। दूसरा फर्टिलाइजेशन कौन सा हो रहा है? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। द सेकेंड मेल गैमेट जो है दैट डिवाइड्स दैट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड जाइगोट, एंड दिस इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, अपनी बुक से इस टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़िए। अपनी जो आपको नोट्स दिए गए थे आपने अपनी नोटबुक में उनको नोट किया है, उनको सामने रख के इस वीडियो को माइक्रोफोन लगाकर, मोबाइल के साथ माइक्रोफोन लगाइए कान में, और अपने नोट्स को समझिए, देखिए, सुनिए, और उसके बाद अपनी बुक को डिटेल से पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीफोनिकली और व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू।